सारस्वते देव भगवान से स्वामी विशेष श्रीनिवास जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण हरे कृष्ण हाँ, तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे लास्ट टाइम? कौन कौन था लास्ट टाइम? तो बताओ कहाँ पहुँचे थे हम लोग? किसी को याद है कि नहीं? वो अब तक भूल गए सब कुछ। ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए थे भरत महाराज से। क्लासरूम में बैठे तो क्लासरूम मत समझो, थोड़ा ऐसा बातचीत हो रहा है। तो वी स्टार्टेड विद भरत महाराज, बराबर है? देन वी जम्प टू शांतनु. Then we said that Shantanu had a first wife, her name was Ganga, right? Then they begot 7 children, and all those 7 children died because Ganga murdered them in a way. Then उसके बाद the 8th son came, जहाँ पे शांतनु told her enough, मत करो. Then Ganga left Shantanu, right? कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ हुआ था. फिर उसके बाद में the 8th child also, Ganga takes away the child. Then after that he comes back after a long time and he has learnt everything. His name is Devavrata now. Now he is eligible to become the king. So he becomes the crowned prince. Crowned prince मतलब वो prince जो अभी अगला राजा बने, right? Now once he becomes a crowned prince, you know, every villagers and all the people from Hastinapur, they are very happy that he is, you know, he is the best, he is going to be the best ruler, क्योंकि he is full of all prowess and he is perfect in every quality. But then Shantanu falls in love again with some other woman. Her name was Satyavati, right? Satyavati जो थी, her father makes a demand कि Devavrata should not become the king and Devavrata's children also should not become king. So Devavrata makes a promise, है ना? He takes a vow. He says that, okay, I will not get married also. I will remain a brahmachari, and your sons, like Satyavati's son, they are going to become the rulers. और lineage ऐसा चलेगा, मैं कभी राजा बनूंगा ही. Then he promises to his father that I will, you know, remain loyal to the king always, and I will see your face in the ruler of Hastinapur. After that, Satyavati with Shantanu, she begets 2 children. Their name were Chitrangada and Vichitravidya. याद आ रहा है? चित्रांगदा जो था, he becomes a very big fighter, you know, very big warrior. चित्रांगदा नाम का एक दूसरा गंधर्व था, who becomes envious of this चित्रांगदा because he was becoming very famous. So मेरे नाम से कोई और भी फेमस है, तो लोगों में कंफ्यूजन होता था कि कौन सा चित्रांगद के बारे में. तो वो डिसाइड किया कि एक ही चित्रांगद होना चाहिए. So he goes and challenges Chitrangada, and they have a very long fight. At the end, the human Chitrangada, who is the son of Shantanu and Satyavati, they die. That person dies. Now there is only Vichitravidya. Vichitravidya was very young, so he could not become, you know, the king immediately. Shantanu passes away. Vichitravidya gets married. So for the marriage also, Bhishma goes to the king of Kashi. Then उधर से 3 प्रिंसेस रहते हैं जिनको लेके आ जाता है किडनैप करके, अम्बा, अंबिका, अंबालिका. उसमें से अम्बा जो रहती है, she is in love with some other prince, so she is sent there. अंबिका और अंबालिका जो है, वो लोग का शादी करवा देते हैं विचित्रवीर्य के साथ, but he was very young, and due to, you know, he was enjoying life and all this and that, but he died very young, and there were no progeny. उनके कोई बच्चे नहीं. Now Hastinapur is under a very, you know, it's a very big crisis कि कौन अगला राजा बने.
So Satyavati approaches Bhishma and says that you forget the promise. You have made the promise for me. You forget the promise, and you become the king. But then Bhishma says no. I cannot break my promise. I will not break my promise. For me, words. मतलब वो बोलता ना कि मैंने एक बार बोल दिया तो अब बोल दिया. अभी कुछ नहीं कर सकते. Then Satyavati remembers that she has some other son also. And who is that? That is Vedavyasa. You know, once when she was a little girl, वो time पे, you know, Parashar Muni, he comes and he finds that, you know, the constellation is right. So Vyasdev has to appear. So he approaches Satyavati. Then after that, you know, Krishna Dvaipayana Vyasa is born. So she approaches Vyasdev. She calls him. They have 3 children in the kingdom. One is Dhritarashtra, the most eldest one, but he is blind. The second one is Pandu. Right? So he was very pale skin, but he was very strong and had prowess. So he became the king. The third is a son who was begot in a womb of a maid servant, whose name is Vidura. So he becomes a minister. So he cannot become a king, but he can be a minister. So he is appointed as the chief minister of the country. Right? So he is an advisor. So now Pandu, he becomes a king. Pandu gets married to 2 queens. One is Kunti and the second one is Madri. Right? After that, Pandu was, very much detached, and he decides that I will stay in the forest. Let my brother, he rule on behalf of me. Now this is important. Let him rule on behalf of me. It doesn't make him the king. So Dhritarashtra is not supposed to be the king. Why? Because he is not eligible to become the king. The person who is eligible is Pandu. So now Pandu wants to retire. So what he does is, he asks Dhritarashtra to sit on the throne, saying him that rule on behalf of me. Right? Like a proxy. So who is the king? The king is Pandu. But who is ruling? Dhritarashtra is ruling with the assistance of Bhishma and Vidura. Why? Because Pandu wants to retire. Now he goes into the forest, and after that, he is cursed, he cannot have children. Then after that, Kunti has a boon, and because of the boon, 5 children are born. And after that, Pandu passes away, Madri goes in Sati with him. Right? Now there is Kunti and 5 children. Right? All these 5 children are born out of Devatas. Now, these 5 children and Kunti, all the sages in the forest, they ask them to go back to Hastinapur. So Kunti along with her 5 children, they go to Hastinapur. Right? When they come to Hastinapur, there is already 100 sons of Dhritarashtra and 1 daughter. Right? All these people are enjoying royalty. But then the Pandavas come. The Pandavas are very soft spoken. These people are quite arrogant and all those things. But the Pandavas are very soft spoken, very nice, like that. So what happens is, naturally Duryodhana and his party, like the Kauravas, the 100 brothers, they feel envious of Pandavas. Right? Because every citizen, they like Pandavas and all this. Now, things become more complex when Shakuni starts advising Duryodhana what to do. See, आज के लेक्चर तक अपन आए ही नहीं है, अभी भी हम लोग पिछले इसमें ही, ठीक है. So इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ. So they devise a plan that we will kill Bhima. Why? Because in childhood, Duryodhana feels that the biggest threat for him is Bhima. Because Bhima could fight with all the 100 princes all together and defeat them, and he would make fun, he would humiliate them and laugh. तो वो लोग को अच्छा नहीं लगता. So they devise a plan कि we will kill Bhima, we will eliminate him. So Duryodhana, once, he plans a picnic, and in the picnic, he makes, some poison and feeds Bhima, and throws him in Ganga. So what happens is, he drowns into Ganga, and he goes to the Nagaloka. Then he meets some other personality there, because of whom he comes back even more strong. Right? He doesn't die. He comes back even more strong. And after that, now the Pandavas are aware
कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग हम लोग को मारना चाहते हैं और ये लोग अभी और प्लान्स बनाएंगे. इट्स जस्ट अ बिगिनिंग. दे रियलाइज. यहाँ पे हम लोग ने ख़त्म किया था जहाँ तक मुझे याद है, बराबर. तो यहाँ से अभी आगे बढ़े. नाउ व्हाट हैपेंस इज ऑल दीज चिल्ड्रन दे आर स्टेइंग इन हस्तिनापुर. दे आर बीइंग ट्रेन्ड बाय कृपाचार्य हु इज द कुल गुरु ऑफ द कुरु डायनेस्टी. कुल गुरु मतलब पहले के टाइम पे ऐसा देयर वुड बी सम ब्राह्मणा हु वुड बी लाइक द एडवाइजर एंड द टीचर ऑफ द एंटायर रेस. सो दैट इज कुल गुरु. तो पहले के टाइम पे भी ऐसा ही होता था. जो स्पेशलिस्ट होता है ना उनके पास से ही चीज़ें सीखी जाती. सो एवरीबडी लाइक कृपाचार्य इज वेरी गुड एट एवरीथिंग बट ही इज नॉट अ स्पेशलिस्ट. सो नाउ भीष्मा he thinks that somebody should be there who will teach all these princes the art of Dhanurvidya so that they can become experts. धनुर्विद्या मतलब मार्शल आर्ट्स और ये सारी चीज़ें इनको सिखाने के लिए कोई होता तो अच्छा हो. तो भीष्मा is an expert himself, but it is not necessary ना. somebody who is an expert himself can be a good teacher. Teaching is a different skill and knowing is different. अब क्या हुआ, एक दिन जब ये सारे जो बच्चे थे, जो प्रिंस लोग, ये लोग एक जगह पे खेल रहे थे और जब ये लोग खेल रहे थे ना तो ये लोग है ना एक बॉल के साथ खेल रहे. ये बॉल जाके एक कुएं में गिर जाता और ये लोग को समझ में नहीं आता है कि अभी क्या करने का, इसको कैसे निकालने का, कुछ नहीं पता. और वो टाइम पे एक दरिद्र एक ब्राह्मण उधर से चल के आता है और वो आता है और वो देखता है ये लोग का सिचुएशन कि क्या है. अभी वो 100 बच्चे हैं, फिर उसके बाद में 5 पांडव है, ये लोग सब लोग खेल रहे थे. ये बॉल जाके एक कुएं के अंदर गिर गया, अभी पता नहीं ये लोग को कैसे निकालना है. तो वो जो ब्राह्मण रहता है वो चल के आता है और पूछता है क्या हुआ, तो वो लोग बताते हैं कि ऐसा है. और वो बहुत डीप था, उनको समझ नहीं आ रहा था. So this Brahmana, he does a very extraordinary thing. What he does is, he picks up a blade of grass and chants some mantra, and he shoots it to the ball and gets it back. और उसके बाद में he takes out one of his rings and he throws that into the well. और बॉ और एरो से वो उसके ऊपर ऐसा वो बोलते हैं ना, एक एरो के ऊपर दूसरा एरो, दूसरा एरो के ऊपर तीसरा एरो करके वो ऊपर तक एरो बनाते हैं और ऐसा उसको निकालते हैं. अब बोलते हैं तुम लोग का क्षत्रिय होने का मतलब ही क्या है जब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, एक ये तो निकाल नहीं पाते तुम लोग करके. मतलब ही काइंड ऑफ मेक्स फन ऑफ दैम. बट इन ऑल दीज अटेम्प्ट्स everybody they get back the ball and they are amazed and all these things. But Arjuna, he was very fascinated by the ball. कि कौन है ये, ऐसे कैसे कर सकता है, मुझे भी सीखना है. Then somebody goes to Bhishma, all these boys, and they narrate the entire scene कि ऐसा कुछ हुआ था. And Bhishma at once he realizes कि who this person is. This person is Drona. ठीक है, द्रोणाचार्य जो है ना, मतलब ये द्रोणाचार्य है. एंड ही रियलाइजेस इट बिकॉज भीष्म और द्रोणाचार्य का एक कनेक्शन वो ये है कि ये लोग ने मार्शल आर्ट्स जो है ना वो एक ही गुरु से सीखा. मतलब अलग अलग टाइम पे सीखा है बट वो लोग ने एक ही गुरु से सीखा. तो पूरे वर्ल्ड में वो टाइम पे ना कुछ गिने चुने लोग ही थे जो लोग ने एक्चुअली परशुराम से खुद सीखा हुआ था. धनुर्विद्या जो है ना वो परशुराम से खुद सीखा. अगर तुम लोग को याद है तो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि गंगा देवी जब देवव्रत को लेके जाती है तो वो हर एक आर्ट के लिए अलग अलग गुरु के पास जाती है. जैसे पॉलिटिक्स हो गया और ये सारी चीज़ें सीखने के लिए वो बृहस्पति के पास लेके जाती है. फिर कुछ और सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास, ऐसे अलग अलग लोगों के पास लेके जाती है. और धनुर्विद्या सीखने के लिए खुद परशुराम के पास लेके. Parshuram is the 6th avatar of Lord Vishnu. Means he is God himself, and he has all those prowess. सब बोलता ना, and he was the most expert. मतलब he is that person who single-handedly wiped out the entire Kshatriya race 21 times around the world. अकेले, कोई सेना के बिना. He killed. मतलब एक आर्मी को वो अकेले फेस करके मार डाला.
21 टाइम्स वो लोग उन्होंने वो किया है पूरे दुनिया में, ब्लड शेड ऐसा। तो वो थे परशुराम, और परशुराम ने ऐसा भाव लिया था कि मैं कोई क्षत्रिय को सिखाऊंगा ही, कोई क्षत्रिय को मैं नहीं सिखाने वाला। द ओनली एक्सेप्शन वॉज भीष्म हिमसेल्फ, बिकॉज गंगा देवी टोल्ड, गंगा देवी ने अप्रोच किया तो इसके वजह से भीष्म को सिखा दिया, नहीं तो उन्होंने वाव लिया था कि मैं कोई क्षत्रिय को नहीं सिखाऊंगा। अब क्या हुआ, ये द्रोणाचार्य थे, वो तो ब्राह्मण है तो वो तो सीख सकते हैं ना उनसे, तो वो सीख रहे थे उनसे। तो भीष्म को ऑलरेडी पता, अभी एक ही गुरु के 2 शिष्य है तो वो लोग भाई जैसे हुए ना, गुरु भाई गुरु भाई, तो ये लोग गुरु भाई है, तो ही नोज कि अरे ये परशुराम से सीखे मतलब कुछ तो प्रवास होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि द्रोणाचार्य का जो ख्याति है वो भी हर जगह फैला हुआ है, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, बट द ओनली थिंग इज बिकॉज ही वॉज ए ब्राह्मण, ही वॉज वेरी पुअर, दरिद्र, उनके पास कोई पैसा या कुछ भी नहीं। So somehow or the other he also wanted to associate with the Kuru dynasty. Bhishma was searching for an apt teacher and he comes across Dronacharya. So he finds that Drona is a good luck and he appoints Dronacharya as the teacher of all the princes and all other Kshatriyas in the kingdom. समझ गए? तो वो उनका गुरुकुल था, वो गुरुकुल के अंदर सब लोग सारे बच्चे रहते थे और वो लोग सब लोग सीख रहे थे। अब यहाँ पे मेजर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ना, सारे के सारे कैरेक्टर्स का, वो सब यहाँ पे होता है, क्योंकि ये लोग यूथहुड में आ रहे हैं, लोग टीनेजर्स, लेट टीनेजर्स थे, उधर से वो लोग अभी बड़े, वो बोलते हैं ना एकदम एडल्टहुड की तरफ आ रहे हैं। अब क्या होता था, ये जो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो लोग सब एक्सपर्ट्स ही थे हर चीज़ में, बट कुछ लोग का स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, जैसे कि दुर्योधन और भीमसेन जो थे ना, ये लोग गदा युद्ध में बहुत एक्सपर्ट, ये लोग को भी आता सब कुछ था, लेकिन ये लोग गदा युद्ध में एक्सपर्ट, मेस फाइटिंग जो था। जो युधिष्ठिर थे, मतलब पांडवों में सबसे बड़े, ही वॉज एक्सपर्ट विथ स्पीयर्स, वो भाला होता है ना, भाले में एक्सपर्ट। नकुल और सहदेव जो थे वो लोग स्वॉर्ड में एक्सपर्ट, भीमसेन का तो मैंने ऑलरेडी बताया। अर्जुन ऐसा था जो सब में एक्सपर्ट था, इन एवरी आर्ट ही वॉज एन एक्सपर्ट, एंड इट वॉज सेड दैट ड्यूरिंग द टाइम ही कंप्लीटेड द स्टडीज ऑल्सो, ही वॉज दैट पर्सन हु कुड फाइट एन आर्मी ऑफ 60,000 पीपल एट वंस। 60,000 लोगों के साथ एक साथ युद्ध कर सकते थे। वो ऑलरेडी उन्होंने मतलब गुरुकुल में ही वो लेवल के हो गए, तो गुरुकुल में ही वो अतिरथी बन गए। तो इसमें भी स्टेजेस, जैसे एक रथी होता है जो 1-on-1 कॉम्बैट करता है और कुछ चीज़ें आती है उसमें, महारथी होता है। तो अर्जुन वॉज ऑलरेडी एन अतिरथी, देन ही वॉज जस्ट जस्ट इन हिज बॉयहुड यूथ, जस्ट जो स्टार्टिंग फेजेस होता है ना यूथ, तभी ही वॉज ऑलरेडी अतिरथी एंड ही वॉज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, बट हिज कोर कॉम्पिटेंसी मतलब और एक्सपर्टीज में भी और एक्सपर्टीज था वो है ना, ठीक है, यहाँ तक समझ। अब ये पता कैसे चलता है, एंड हाउ ही विंस द हार्ट ऑफ द्रोणाचार्य। नाउ दीज स्टोरीज, मे बी यू ऑल नो दीज स्टोरीज, बट स्टिल आई विल नरेट them, ठीक है। वन डे द्रोणाचार्य, he was trying to sleep, but he could not sleep because of he was remembering something that had happened in past with him. And he was just lying down and trying to sleep, but he was sleepless nights then, because he was kind of humiliated, frustrated कि जो भी हुआ उनके साथ, and he was just thinking of avenging or revenging, to be specific. This time he hears, वो आवाज़ होता है ना, जब भी हम लोग एरो को वो रिलीज करते हैं तो एक आवाज़ आता है, वो हवा का और वो एक फ्रिक्शन का एक साउंड है अलग ऐसा, तो उनको वो सुनाई पड़ रहा था और उनको डर लगने लगा। डर इस बात का लगा कि हस्तिनापुर के जितने भी प्रिंस लोग हैं वो लोग सब ये गुरुकुल में रहते हैं, यहाँ पे अटैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। रात को अगर कोई अटैक कर रहा रहेगा तो नेबरिंग कंट्री का या कोई भी, ताकि ये प्रिंस लोग खत्म हो गए और वो रेस आगे नहीं बढ़े, मतलब पॉलिटिक्स है ना ऐसा। ही वाज काइंड ऑफ अफ्रेड कि हाँ क्या हुआ।
एंड एट द डेथ ऑफ द नाइट ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड कि चल क्या रहा है. एंड टू हिज सरप्राइज he finds Arjuna alone in the woods. He is practicing, in night. So Dronacharya is amazed कि ये क्या हो रहा है, because Arjuna is still a small boy, but he is not, अभी वो अतिरथी और ये सब बने नहीं. He's just a small boy, and he is practicing alone in the woods in the night. ठीक है? So he becomes very amazed कि क्या हो रहा है भाई ये. तो वो जाते हैं क्योंकि मैंने इनको सिखाया ही नहीं कि रात को कैसे धनुष बाण चलाने का और ये सारे चीज़ें, बट अर्जुन खुद से कैसे करता है. तो अर्जुन ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हैं. वो बोलते हैं कि एक्चुअली ना मैं रात को सोने ही जा रहा था और वो टाइम पे भीमसेन अकेले जाके चोरी करके खाना खाते थे रात को. ठीक है, किचन में जाते थे, चोरी करके खाना खाते थे. अलाउड नहीं था उनको वो सब करना, गुरु के घर पे रहते ऐसे कभी भी उठ के कुछ भी खा लिया ऐसा नहीं. तो वो जाके चोरी करके खाते थे. तो एक दिन रात को उन्होंने नोटिस किया कि भीमसेन जो है अकेले अंधेरे में बैठ के खा रहे थे. तो उन्होंने पूछा ऐसे कैसे अंधेरे में बैठ के क्यों खा रहे हो. तो भीमसेन एक मतलब ऐसे बोल दिया, भीमसेन ने ऐसे कुछ सोच के ऐसा नहीं बोला. उन्होंने ऐसा बोला कि even the hands have eyes if they have a purpose. कि अंधेरा है लेकिन मेरे हाथों को भी पता है कि मुंह किधर है, तो मैं ढाल सकता हूँ मुंह के अंदर, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अर्जुन को स्ट्राइक होता है अगर रात को बैठ के खाना खा सकते तो रात को हम लोग बिना देखे एक टारगेट को क्यों नहीं शूट कर सकते. एंड अर्जुना स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग अलोन इन द नाइट. तो ये फर्स्ट टाइम नहीं था, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नाइट था और देख लिया द्रोणाचार्य. अर्जुन every night he started practicing, and it is said that in the Mahabharata it is said that he becomes Gudakesha. One of the names of Arjuna is Gudakesha, means one who has conquered sleep. So Arjuna for many days in stretch he could survive without sleeping. वो रात को सोए बिना कर सकते थे क्योंकि वो बचपन से उन्होंने वो प्रैक्टिस किया है ना, रात को चोरी छुपके जाके प्रैक्टिस करते थे. तो द्रोणाचार्य को ये चीज़ पता चला एंड द्रोणाचार्य इज इम्प्रेस्ड कि दिस बॉय ही इज सो डेडिकेटेड एंड ही वांट्स टू बिकम द बेस्ट. एंड द्रोणाचार्य डेवलप्स एन अफेक्शन टू दिस चाइल्ड. ठीक है, अब क्या हुआ, द्रोणाचार्य में भी एक प्रॉब्लम था और वो था पुत्र. उनको भले ही इतने सारे प्रिंस को ट्रेन कर रहे हैं और ये सारे चीज़ें हो रहे हैं, ही इज लॉयल टू हस्तिनापुर, एवरीथिंग इज राइट, बट ही हैज़ अ वेरी स्पेशल अफेक्शन टू हिज ओन चाइल्ड. उनके बच्चे का नाम था अश्वत्थामा. तो अश्वत्थामा के लिए एक स्पेशल अफेक्शन था हमेशा से द्रोणाचार्य. तो द्रोणाचार्य क्या करते थे, अश्वत्थामा को कुछ एक्स्ट्रा सिखाने के लिए ये सारे बच्चे लोग को इंक्लूडिंग अश्वत्थामा सारे बच्चे लोग को बोलते थे कि गंगा जी में जाके पानी भर के लेके आओ, और सबको एक एक पॉट देते थे और देते थे. लेकिन अर्जुन ने एक चीज़ नोटिस किया कि हमेशा ऐसे कैसे होता है कि अश्वत्थामा ही पहले पहुंच रहा है घर पर. सब लोग पानी भरने के लिए जाते हैं लेकिन सिर्फ अश्वत्थामा ही सबसे पहले पहुंचता है रिटर्न घर पर. और अश्वत्थामा के पहुंचने के बाद समझो ना 5 मिनट 10 मिनट बाद वो लोग सब लोग ऐसे क्यों हो रहे हैं. तो अर्जुन ने एक चीज़ नोटिस किया, अश्वत्थामा का जो पॉट है ना वो थोड़ा स्पेशल है. उसमें क्या था कि वो ओपनिंग जो है ना पॉट का वो बड़ा है, बाकी सब लोग का ओपनिंग छोटा है, और अश्वत्थामा का जो पॉट का ओपनिंग है वो बड़ा है. तो इससे क्या होता है, पानी जल्दी भर जाता है. वो दूसरा जो रहेगा वो गुड़ होकर टाइम लगता है ना भरने का. इसके अंदर क्या है कि डाला भरा आ गया, तो वो टाइम सेव हो रहा है उसका अश्वत्थामा का. तो अर्जुन एक दिन क्या करता है, वो भी अपने पॉट का वाटर करके वो पीछे भर के आ जाता है अश्वत्थामा का. और वो देखते हैं कि अश्वत्थामा को कुछ स्पेशल चीज़ें द्रोणाचार्य सिखा रहे, जैसे कि व्यू हो गया. व्यू मतलब स्ट्रैटेजीज होता है, जैसे कि एक वॉर के अंदर पोजीशनिंग एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि कौन सा योद्धा किधर खड़ा रहेगा और ये सब, और उसके हिसाब से कुछ ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज होते हैं कि भाई पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज होती है.
जैसे कि चक्रव्यूह करके तुम लोग ने सुना होगा। चक्रव्यूह एक बहुत फेमस व्यू है जिसके अंदर जो मेन अथिरथी और महारथी लोग रहता है ना और किंग रहता है ना, वो बीच में होता है और उसके अराउंड पूरा आर्मी को 5, 6, 10, 12 सर्कल्स में खड़ा करते हैं और पूरा जो सर्कल्स है ना वो मूव करता है। तो एक सर्कल अगर क्लॉकवाइज मूव करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तीसरा क्लॉकवाइज वापस मूव करता है, चौथा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होता है कि इसको तोड़ने के लिए कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस होते हैं, मतलब सबको नहीं पता होता। मतलब ऐसा बोलते हैं कि महाभारत के टाइम पे भीष्म, द्रोण, अर्जुन और कृष्ण और कर्ण, ये 5 जन के अलावा पूरे युद्ध भूमि में किसी को भी नहीं आता था तोड़ने। फिर जो आधा आता था अभिमन्यु को, तो फंस गया। अपन बात में बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सब जो व्यू और ये सारा चीज़ रहता है ना, वो सब सिखा रहता है अश्वत्थामा तो सेलेस्टियल वेपन्स के बारे में। लेकिन उस दिन द्रोणाचार्य नोटिस करते हैं कि अर्जुन कैसे जल्दी आ गया और वो देखते हैं कि अर्जुन ने भी मतलब ये नोटिस कर लिया और वो आ गया और उनको पता चलता है कि उसका रीज़न क्या था अर्जुन को आने का, क्योंकि ही वॉज इंक्विजिटिव, ही न्यू दैट द टीचर इज टीचिंग समथिंग, सो आई हैव टू बी देयर। एंड अगेन द्रोणाचार्य इज वेरी मच इम्प्रेस्ड with Arjuna. One day Dronacharya takes a test and he hangs a bird, छोटा सा मतलब खिलौना जैसा बर्ड होता है, उसको ये hangs in between the in between a branch। तो बहुत ऐसा ब्रांच था ट्री का, बहुत बड़ा ट्री है, ट्री में बहुत दूर कुछ ब्रांचेस के बीच में he hangs the bird। और उसके बाद में he asks the princess की तुम लोग इसको एम करो एंड इट शुड पियर्स द आईज ऑफ द बर्ड, बराबर है। तो सबको बुलाते हैं, पहले युधिष्ठिर को बुलाते हैं, युधिष्ठिर को पूछते हैं कि क्या दिख रहा है। वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पेड़ दिख रहा है, वो बर्ड भी दिख रहा है, मुझे आप दिख रहे हो, बाकी सब लोग दिख रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं छोड़ो साइड हो गया। मतलब तुम्हें एक एक करके सबको बुलाना चालू करते हैं, बट इज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड कि क्या हो रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज गिविंग द सेम आंसर कि मुझे ये सब दिख रहा है, बट ही वांटेड सम अदर आंसर। तो वो शूट करने ही नहीं दे रहे, वो पूछते थे कि इतना हो रहा है, हाँ ठीक है अगला आने दो। अर्जुन तक, अर्जुन वॉज द लास्ट कंटेस्टेंट हु केम इन, ही स्टैंड्स टेक्स पोजीशन और उसके बाद में द्रोणाचार्य पूछते कि बताओ अर्जुन क्या दिख रहा है, एंड अर्जुन सेज दैट आई कैन सी द बर्ड। तो द्रोणाचार्य पूछते हैं कि क्लियरली देखो हम नहीं दिख रहे हैं, नहीं ठीक है और क्लियरली बताओ क्या दिख रहा है। बोलते कि वो एक आँख जो है ना वो मेरे को ऐसा बराबर से दिख रहा है। तो बोलते शूट करो एंड ही पियर्सेस दैट आइज। एंड उसके बाद में द्रोणाचार्य इज इवन मोर इम्प्रेस्ड, सो ही एम्ब्रेसेस अर्जुना एंड ही सेज दैट यू आर गोइंग टू बिकम द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, नोबडी इज गोइंग टू सरपास योर स्किल्स। देन वन डे he goes to, like they all go to Ganga to take bath, and Dronacharya is caught by a crocodile. So when he is caught by the crocodile, so he cries out for help. Now Dronacharya is powerful, he can kill the crocodile himself, but still he wants to see how his students would respond to this. So when the crocodile catches him, so he shouts कि बचाओ बचाओ करके, और सारे जो प्रिंस लोग हैं ना वो लोग फ्रीज हो जाते हैं फियर में। तो हम लोग को डर लगता है तो हम लोग हिल नहीं पाते ना, हमको नहीं पता अगला क्या करना है, तो वो लोग ऐसे रुक जाते हैं। एंड अर्जुना वेरी कैजुअली ही टेक्स आउट 5 bows एंड ही शैटर्स द एंटायर क्रोकोडाइल। 5-6 हिस्से में तोड़ देते हैं क्रोकोडाइल, और उसके बाद में द्रोणाचार्य बच जाए। एंड द्रोणाचार्य मेक्स अ प्रॉमिस टू अर्जुना दैट आई विल teach you all the celestial weapons I know. Celestial weapons are basically those weapons that can manipulate the nature. These are like missiles basically. अभी आज के तारीख में missiles जैसे काम करता है ना वैसे। So he promises Arjuna that I will teach you all the celestial weapons including Brahmastra. And Brahmastra is considered to be the ultimate that a guru can teach. So he promises that you will become the best archer in the world. Then one fine day the entire studies are over, all the princes are ready to leave the Gurukul, and Bhishma, Dronacharya, he proposes to Bhishma
that we should, you know, prepare a stadium, एक अरीना बनाओ जहाँ पे ये लोग सब लोग अपना शक्ति का प्रदर्शन करें, सब लोग दिखाएंगे कि हम लोग का क्या स्किल है और ये सब है, ताकि एक एंटरटेनमेंट हो जाए सारे जो यहाँ पे जो भी सिटीजन्स है वो लोग, और उसके अलावा वो लोग को कॉन्फिडेंस आए अपने प्रिंस लोगों के ऊपर कि भाई ये लोग का प्रोग्रेस कैसे है, और आप लोग भी देख सकते हो कि मैंने क्या सिखाया है ये लोग। तो वैसा ये लोग एक अरीना सेट करते हैं और वहाँ पे ये लोग एक दिन डिसाइड करते हैं, एक मुहूर्त कि भाई ये टाइम पे सारे प्रिंस लोग एक साथ आएंगे और उसके बाद में अपना अपना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे कि ये लोग ने क्या सीखा है गुरु को। तो वो शक्ति प्रदर्शन वाला दिन आता है, धृतराष्ट्र बैठा है पूरा, मतलब वो स्टेडियम ऐसा बोलते हैं कि इतना ऑपुलेंट बनाया था वो लोग ने, और उसके बाद में किंग जो धृतराष्ट्र वो आता है बैठता है, उनके साथ में विदुर, संजय, फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सब लोग बैठते हैं और एक एक करके ये प्रिंस लोग ऐसा अंदर आते हैं, और हर एक प्रिंस जब अंदर आता है तो पूरे सिटीजन ऐसे चीयर करने लगते हैं और ये सारे चीज़ वो एकदम टिपिकल स्टेडियम जैसा। तो ये लोग एक एक करके अंदर आते हैं और उसके अंदर से भीमसेन और दुर्योधन जो है ये लोग का बोलते हैं कि ये लोग का एक गदा युद्ध है, ये लोग दोनों को एक दूसरे के साथ लड़ना है, पहले से ही दोनों को एक दूसरे पे पीछे से ऊपर से अभी मौका भी मिल गया है, तो ये लोग ऐसा लड़ते हैं कि एक दूसरे को मार ही डालते हैं और लड़ के बहुत ऐसा। तो सिटीजन लोग बहुत चीयर कर रहे हैं, कोई भीम का साइड ले रहा है, कोई दुर्योधन का साइड ले रहा है और वो लोग भी झगड़ रहे हैं, ऐसा सब हो जाता है। फिर एंड में द्रोणाचार्य बीच में घुसते और बोलते हैं बस हो गया, डिसाइड हो गया, इन लोगों ने बहुत निकाल लिया, क्या नेक्स्ट। फिर उसके बाद में युधिष्ठिर आता है, फिर उसके बाद में बाकी जो दुशासन और वो सारे लोग सब लोग आते हैं। अभी द्रोणाचार्य का सबसे बड़ा एस क्या है, ये पूरा अर्जुन है, तो उसके बाद में लास्ट में अर्जुन को भेजते हैं और अर्जुन को जब भेजते हैं ना, अर्जुन सारे जितने भी दिव्यास्त्र सीखा हुआ रहता है ना, जितने भी समझते हैं, खड़े खड़े अर्जुन बाणों से वो बोलते हैं माउंटेन्स बना रहा है, फिर उसके बाद में उसको तोड़ रहा है, बारिश कर रहा है, फिर अग्नि को प्रकट कर रहा है, ऐसे मतलब एकदम वो सुपर ह्यूमन जो चीज़ें रहते हैं ना वैसे सब चीज़ें करते हैं। मूविंग और नॉन मूविंग टारगेट्स ऐसे अलग अलग जगह पे रखा हुआ है और अर्जुन कुछ देखे बिना सबको क्लियर कर रहा है। और सिटीजन्स मतलब ऐसा बोल ही देते हैं कि अर्जुन से बड़ा तो कोई नहीं है, मतलब आज तक हम लोग ने किसी को नहीं देखा जो अर्जुन से बेटर है ये सारी चीज़ें। और वो एग्जैक्ट वो टाइम पे एक दूसरा व्यक्ति जो है वो स्टेडियम में एंट्री, ठीक है। अब ये व्यक्ति जब आता है ना अंदर, तो पूरा वो बोलते हैं ना सूर्य का जो तेज होता है ना ऐसा वो एफल्जेंस, उसके साथ में एक व्यक्ति अंदर आता है जिसका ईयर्स में बहुत ब्यूटीफुल ऐसा ईयर रिंग्स है, कुंडल जो बोलते हैं, और बॉडी में एक नेचुरल आर्मर गोल्ड प्लेटेड ऐसा आर्मर, और ये व्यक्ति अंदर आता है और ये व्यक्ति ओपनली चैलेंज करता है अर्जुन। अब इसके सब बीच में क्या हुआ था, अर्जुन जब भी ये परफॉर्म कर रहे थे ना, तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा डर दुर्योधन को लग रहा था। उसको डर इस बात का था, भीमसेन से तो प्रॉब्लम था ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोचता था कि ठीक है भीम से तो मैं कर लूँगा, मैं निपट लूँगा, मतलब निपटा दूँगा भीम को, ऐसा कोई इशू नहीं है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर ले। क्योंकि दुर्योधन का जो एरोगेंस है ना, वो उससे ये चीज़ कभी एक्सेप्ट करवाता ही नहीं था कि भीमसेन उससे बेटर है कोई भी चीज़। तो दुर्योधन को ऐसा था कि भीम को मैं निपटा दूंगा, फिर उसके बाद में कुछ नहीं होगा, बचपन से यही सोचता था। लेकिन अभी अर्जुन आ गया है जो हर चीज़ में सब लोग से एक्सपर्ट है, और उसको ऐसा था कि मैं इसको कैसे निपटाऊंगा, बाकी तो चलो ठीक है, अगर ये दो चले गए ना भीम और अर्जुन तो प्रॉब्लम नहीं है, पर भीम को चलो ठीक है मैं देख लूँगा, पर अर्जुन को कौन देखेगा, कोई नहीं है जो अर्जुन का सामना अभी कर सकता, और सबने वो चीज़ सर्टिफाई कर लिया। और वो टाइम पे ये व्यक्ति आता है और ये चैलेंज करता है कि तुम लोग सब लोग बोल रहे हो ना कि ये बेटर है करके, मैं तुम लोग को प्रूव करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे इससे बेटर हूँ। और वो सारे चीज़ उधर करके दिखाता है जो चीज़ अर्जुन ने किया था, सारे दिव्यास्त्र चलाता है, सारे टारगेट्स को देखता है, सब कुछ करता है,
और उसके बाद में बोलता है कि मुझे ना 1-on-1 करना है अभी अर्जुन के साथ में, आज या तो मैं रहूँगा नहीं तो अर्जुन रहेगा, और तुम लोग सब एक्सेप्ट करोगे कि मैं अर्जुन से बेटर हूँ कर। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये बचपन से यही चाह रहा था, मतलब वो बचपन से यही चीज़ में पला बड़ा है कि मुझे एक दिन ऐसा दिखाना है कि मैं अर्जुन से बेटर हूँ, अर्जुन से बेटर हूँ, अर्जुन से बेटर। और ये अभी उधर खड़ा होगा कुछ क्या है अभी मेरे को, तो अभी ना यहाँ पे धृतराष्ट्र का साइकोलॉजी है। धृतराष्ट्र जब बैठे भी थे ना, धृतराष्ट्र आते उनको बता रहे विदुर जी कि चल क्या रहा है, तो विदुर जी को पूछते कि ये लोग सब लोग ऐसे चिल्ला क्यों रहे, तो बोलते अरे वो अर्जुन ने एंट्री दिया है ना इसीलिए, तो अर्जुन इतना अच्छा है, बोलते कि अर्जुन तो ये सब कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, आपके बेटे लोग कुछ नहीं कर पाए, ऐसे सब करके वो मतलब वो अभी सच बोल देते थे, मुझे क्या कर सकते, तो वो बोल रहे थे। और धृतराष्ट्र को जो है वो बाहर दिखा नहीं सकते, बट अंदर ही अंदर वो भी जल रहे थे कि यार मेरे बच्चों से बेटर है ये, तो उनको भी वो चीज़ का डर था। ऊपर से अभी ये सारा चीज़ किन के सामने हो रहा है, सिटीजन के सामने हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बोलेंगे कि हमको पांडव ही चाहिए है ना, और मेरे बच्चे निगलेक्ट कर जाएंगे, तो उनको वो सारे चीज़ का टेंशन है। ऊपर से ये लोग बेटर है करके तो पहले से ही अपने बच्चे से ज़्यादा बेटर बाजू वाले का बच्चा होगा तो वो मना। अब ये सारा चीज़ धृतराष्ट्र के साइड से ये सब चल रहा है। इसके बीच में अब ये नया व्यक्ति आ गया जो क्लेम कर रहा है कि मैं अर्जुन से बेटर हूँ, और वो सारा चीज़ करके दिखाया जो अर्जुन ने दिखाया। और अभी सिटीजन्स भी आपस में डिबेट करना चालू कर दिए कि नहीं नहीं ये व्यक्ति ज़्यादा बेटर है, नहीं अर्जुन ही है, या अर्जुन के सामने क्या है, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो पता चलेगा ऐसा। तो सिटीजन लोग फुल मजे लेने को बोल रहे हैं कि भाई लड़ो दो, ताकि हम लोग देखें कि क्या होगा। पर ये सबके बीच में कृपाचार्य, और कृपाचार्य आगे बोलते कि ठीक है द्वंद्व करना है ना तुम लोग को, पर एक रूल है ना कि जो भी हो रहा है, मतलब अगर दो जन के बीच में फाइट होता है तो दोनों इक्वल्स होने चाहिए। तो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि तुम कौन हो, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करें। तो वो टाइम पे वो जो व्यक्ति रहता है वो बोलता है मेरा नाम कर्ण है, और वही टाइम पे एग्जैक्टली एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो भाग के ये कर्ण जो है उसके पास आता है और उसको आलिंगन करता है। तो सब लोग नोटिस करते हैं अरे ये तो राजा का रथ चलाने वाला था, पहले भीष्म का रथ चलाया था, उनका नाम अतिरथ करके, तो उनके साथ में वो बोलते कि अरे ये कौन है, बोलते यही मेरे पिता है। तो बोलते कि अरे ये तो रथ चलाने वाले का लड़का है, ये राजा के लड़के के साथ कैसे युद्ध करेगा, इक्वल्स है क्या ये लोग? भाई बर्थ तो ये लोग इक्वल्स लग नहीं रहे, ये किधर जाके कुछ सीख के आ गया होगा तो कैसे युद्ध करेगा, ये राजा ही नहीं है। तो वो लोग का भी रूल्स होता है ना, अभी ये जो अरीना है यहाँ पे अगर युद्ध करना है तो एक राजा को दूसरा राजा ही चैलेंज करेगा ना, एक प्रिंस को दूसरा प्रिंस चैलेंज करना चाहिए। या ऐसा चैरिटियर का लड़का आके कैसे ये कैसे कर सकता है? अब ये जैसे ही होता है उतने में अभी दुर्योधन की आँख चमकने लग जाती है कर्ण को देख के कि कोई मुझे फाइनली मिल गया जो अर्जुन के सामने कर दे सकता है। तो ये जो चांस है ना इसको दुर्योधन छोड़ नहीं सकता। तो दुर्योधन तुरंत उठता है और दुर्योधन आर्ग्यू करने लगता है कि ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, जन्म के बेसिस पे थोड़ी होता है, टैलेंट के बेसिस पे होता है कि कौन इक्वल्स है, और वो तो इसमें प्रूफ कर ली। और रही बात तुमको ऐसा लगता है ना कि एक राजा के सामने राजा ही ये कर सकता है, चलो ठीक है मेरे हिस्से का अंग देश जो है उसका राजा मैं इसको बना दूंगा आप भी का, फिर उसके बाद में करो ये लोग के बीच में। और उतने में कर्ण भी बोलते अरे मतलब अभी स्टेटस बढ़ रहा है ना, अभी मेरे को अंग देश का राजा बोलेंगे तो ऐसा। और उसके बाद में दुर्योधन बोलता है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा वैसा सब बोल के। दुर्योधन को तो उसका कंपनी तो चाहिए था एनीवे, और कर्ण को ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में किसी ने एक्सेप्ट किया है। एक्चुअली उससे उसके मम्मी पापा सब लोग अच्छे से कह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, बट फिर भी पता नहीं उनको वो कॉम्प्लेक्स था, उनको ऐसा लगता था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है,
मेरा कोई है नहीं, सब लोग तो पता है क्योंकि मैं चैरिटर का बच्चा हूँ तो मेरे को कोई ध्यान नहीं देता है, ये सारी चीज़ें तय कर रही हैं। पर अभी कर्ण को पहली बार ऐसा पता चला है कि मेरे लिए किसी ने इतना बड़ा एक चीज़ कर दिया, मुझे एक जगह का राजा बना दिया। तो कर्ण ही फील्स वेरी मच इंडक्टेड टू दुर्योधन कि नहीं ये मेरा दोस्त है, इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ये सही हो गलत हो कुछ भी, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास जब कुछ नहीं था तभी इसी ने मेरा साथ दिया ना। जब सब लोग मेरे को एक और बार ह्यूमिलिएट कर रहे थे वो टाइम पे यही आया बीच में और इसने मेरा साइड लिया, और उसके बाद में मैं जो लैक कर रहा था वो सब इसने मुझे दिया। तो वो टाइम पे कर्ण फील्स इंडक्टेड टू दुर्योधन, और उसके बाद में वापस डिबेट चलता है कि क्या करना है ये वो। तो एक टाइम के बाद भीष्म भी बोलते हैं कि चलो ठीक है कर लो, ख़त्म करते हैं या जो भी है, लेकिन उतने में सनसेट है। तो सनसेट के बाद अभी समझो सुबह से अगर चालू भी हुआ, लेकिन ये सबके बीच में अभी कर्ण को राजा बना दिया। ऐसा बोलने से थोड़ी होता है राजा बना दिया तो राजा बन गया, ऐसा नहीं होता। तो उसका पूरा सेरेमनी होता है ना, कॉरोनेशन होता है, अभी जो है उससे ये निकाल के ये पूरा ब्राह्मण लोग आते हैं ये करते हैं। तो ये सब उधर का उधर ही करवाया दुर्योधन ने कि आज अगर अर्जुन को ये निपटा देता तो हो गया ना बात खत्म। तो इसलिए वो सब कुछ करवा देता है उधर का उधर ही, लेकिन पर सनसेट है तो जिसके वजह से उधर ही सब कुछ रुक गया और ये लोग दोनों। अब क्या हुआ, कर्ण जो था वो अब राजा बन गया और ये लोग सब फ्रेंड्स हैं, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, फिर वो कौरव पार्टी, फिर शकुनी है ये लोग के परम मित्र, तो ऐसे सब चल रहे हैं। और यहाँ पे 5 पांडव। अब द्रोणाचार्य ने बोला कि तुम लोग का एजुकेशन पूरा खत्म हो गया, एग्जामिनेशन भी हो गया, पास हो गए सब लोग फ्लाइंग कलर्स के साथ। अब गुरु दक्षिणा तो चाहिए ना मुझे। तो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हो, फिक्स फीस नहीं होती कि 1 लाख रुपए में ये कोर्स कर लो, 2 लाख रुपए में ये कोर्स कर लो, ऐसा नहीं होता। फीस वो है जो गुरु मांगता है और वो देना है, वो भले ही कुछ भी। तो अब द्रोण ने ऐसा फीस मांगता है इधर से जिधर से पूरा ट्विस्ट एंड टर्न्स चालू। द्रोण बोलता है कि यहाँ से कुछ दूर पांचाल करके एक देश है, एक किंगडम, वहाँ का राजा जो है उसका नाम है द्रुपद। वो लोग का जो कैपिटल है उसका नाम है काम्पिल्य। बेसिकली तुम लोग को काम्पिल्य जाना है, वहाँ पे जाके उधर का राजा द्रुपद को बंदी बनाना, मारने डालते उसको बंदी बनाना है, उसको सरेंडर करवा के मेरे सामने लेके आना है, हाथ पैर बांध के, बाल पकड़ के घसीटो मेरे सामने लेके आके खड़ा रहो। तो ये मान लेते हैं। तो ये लोग भी ज़्यादा कुछ पूछते नहीं, अपन इधर पूछते हैं ना कि क्यों ऐसा क्या होगा, ऐसे सब। तो ये लोग कुछ पूछते नहीं, ये लोग रेडी हो जाते। और कौरव जो वो लोग बोलते हैं नहीं हम पहले जाएंगे, हम पहले जाएंगे, हम लेके आएंगे। तो दुर्योधन को उधर भी ये है कि गुरु दक्षिणा तो हम ही देंगे, हम साथ में तो काम करेंगे नहीं, हम अलग से जाएंगे, उसको हराएंगे, आपके पास लेके आ जाएंगे, आप कर लेना आपको जो करना है। हम लोग 100 भाई लोग हैं, हम लोग का। तो दुर्योधन क्या करता है, जाता है धृतराष्ट्र को बोल के सेना वेना लेके आ जाता है। हेड रहता है दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और उसके बाद में पूरा आर्मी। ये लोग सब लोग मिलके सीधा टूट बरस जाते हैं काम्पिल्य के अंदर, कुछ बोले बिना सीधा अंदर घुसते ही। ये लोग जैसे अंदर घुसते हैं, द्रुपद भी पागल थोड़ी रहता, राजा होता ना, उसके पास भी तो आर्मी वार्मी है। एक दूसरे राज्य में उसके कैपिटल के अंदर कोई भी ऐसा अचानक से घुस के कुछ भी कर सकता है, वो करने के लिए जाएगा जितना भी सरप्राइज है, वो लोग के पास उतना मैकेनिज्म रहता है ना। ये लोग जैसे अंदर घुसते हैं और द्रुपद को जैसे आइडिया लगता है वो पूरे आर्मी को लगा देता है ये लोग, और पूरा जो कुरु सेना है ना उसका चितड़ा उड़ा देता है सबको। इतना गंदा मारते हैं ये लोग, इतना गंदा मारते हैं, दुर्योधन कर्ण सब रिटर्न भागते हैं। और वो टाइम पे द्रोणाचार्य और ये लोग 5 जन, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये लोग 5 जन और द्रोणाचार्य काम्पिल्य के बाहर खड़े रहते कि क्या हो रहा है करके देखने के लिए। और अर्जुन कॉन्फिडेंट रहता है कि ये लोग से नहीं होगा।
तो इतना एरोगेंस में तुम लोग किधर भी जाके घुस के कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये लोग ठीक है, ये लोग को जाने दो। और ये जाते हैं और उसके बाद में ये लोग भाग भाग के रिटर्न है। तो वो लोग भी कांपिले के बाहर नहीं जाते, वो लोग ऐसा बाउंड्री में ही रहता है ना, तो वो लोग उधर फिर उसके बाद में ये लोग बाहर आ जाते हैं। और भीमसेन ये लोग को चिढ़ाने लगता है कि क्या हो गया, तू तो घसीट के लेके आने वाला था, हमें बोलना वाला था, फिर मैं कुछ और काम करने जाऊँगा, क्या हो गया, अकेले क्यों आए, ऐसे सब मतलब चिढ़ाने लगता है। तो वो लोग को है ना कन्फर्म हो जाता है, पूरा आर्मी लेके हम लोग गए और हमारा कुछ नहीं हुआ, ये 5 जन क्या ही कर देंगे ऐसे। तो दुर्योधन को ऐसा रहता है कि, और उसने देख लिया रहता है कि द्रुपद क्या है, क्योंकि ये लोग सब लोग राजा बने हैं तो वो लोग में कुछ तो होगा ना, ऐसे थोड़ी राजा बन के बैठे हुए किधर, वो लोग खुद उतने पावरफुल होते हैं इसलिए बनता है ना राजा। तो अभी जो है दुर्योधन तो समझ गया कि ये लोग का क्या ही होता है। और तभी द्रोणाचार्य पूछते हैं कि क्या कौन सा सेना लेके जा रहे हो, तो युधिष्ठिर बोलता है कोई सेना में हम लोग लेके जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि सेना किसका है, राजा का है। आप किससे गुरु दक्षिणा मांगे, हमसे मांगे, राजा से तो मांगे नहीं है। तो मेरा गुरु दक्षिणा के लिए मैं राजा का प्रॉपर्टी यूज कर सकते नहीं कर सकते, तो हमारे हिसाब से तो वो करना नहीं चाहिए। तो तब भी मतलब वो लोग का क्वालिटी देखो कि तभी तुरंत द्रोणाचार्य बोलता है कि कितना जस्ट है कि जो चीज़ सही है सिर्फ वही करेंगे, मतलब भले ही जान चले जाए कोई नहीं। वही जगह पे दुर्योधन सीधा गया, पप्पा का लेके आ गया, सब कुछ और चालू हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है, तो अर्जुन पूरा स्ट्रैटेजी बताता है। अर्जुन बोलता है कि हम लोग 4 जन होंगे, द्रोणाचार्य इधर अकेले खड़े, तो उनको अकेले छोड़ के हम लोग नहीं जा सकते किधर। तो युधिष्ठिर को बोलते हैं कि आप इधर ही, एनीवे अगला राजा आपको बनना, हमको अगर कुछ हो गया तो भी आप ही बनोगे ना, तो आप जो है द्रोणाचार्य को गार्ड करते हुए इधर ही रहो, हम 4 भाई जाएंगे अंदर। और उसके बाद में वो लोग स्ट्रैटेजी ये करते हैं कि हम लोग को कैसे किधर से घुसना है, फिर कैसे उधर तक पहुंचना है। अब इसमें से ये लोग 4 जन सीधा कांपिल्य के अंदर घुसते हैं और ये लोग को द्रुपद देखता भी है। ये लोग जब आते हैं ना, क्योंकि वो नोटिस क्यों करता है, ये लोग जैसे अंदर घुसते हैं वापस पूरा डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, सब फूट बरसते हैं और अर्जुन अकेले खड़े खड़े ऐसे बोलते 60-70 हज़ार लोगों को तो ऐसे ही गिरा रहा है खुद ही। भीमसेन का भी वो अकेले कभी ऐसा वो बोलते हैं ना घोड़े पे चढ़े हुए हैं, फिर उसके बाद में अचानक से घोड़ा फेंक के उतर जाते हैं, 10-15 लोगों को तो ऐसे उठाते एक दूसरे के साथ पटक देते हैं, नीचे डाल देते हैं, मतलब ऐसे सब कि भीमसेन बहुत ज़्यादा ये थे, मतलब एकदम एग्रेसिव, अपन सोच ही नहीं सकते कैसा। भीमसेन और दुर्योधन में यही फर्क है। दुर्योधन जब गदा युद्ध करता था ना, वो क्रूड स्ट्रेंथ पे नहीं करता था, वो स्ट्रैटेजिकली करता था दिमाग से, क्योंकि उसका उतना स्ट्रेंथ नहीं था ना भीमसेन। भीमसेन का उल्टा था, मारूंगा तो सीधा वो बोलते हैं ना हैमर जैसा पाट 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 सीधा अंदर डाल दूंगा, मतलब ऐसा कुछ सोचते समझते नहीं तो मार सकते ऐसे। तो अभी क्या हुआ, इतने सारे लोगों को ये लोग 20-25 हज़ार लोगों को तो भीमसेन निपट रहा है और ये अर्जुन 60-70 हज़ार को तो अर्जुन निपटा रहा है। तो सेना खत्म होने लग रहा है 2-3 लोगों से, और द्रुपद अलार्म हो जाता है कि ये क्या चल रहा है। तो द्रुपद खुद आता है ये कर, he was the best in their, that's why he is the king. He comes and he is now facing Arjuna, और ऐसा बोलते हैं कि इतने सारे लोग एक साथ अर्जुन पे ये कर रहे हैं ना, मतलब वॉर कर रहे हैं, तो बहुत सारा मतलब ये लोग सब लोग एक साथ अलग अलग टाइप के ये छोड़ रहे हैं अर्जुन को, जैसे कोई स्वॉर्ड फेंक रहा है, कोई जो है उसका एरो आ रहा है, तो इतने सारे चीज़ एक साथ आ रहे हैं। और ऐसा बोलते हैं कि अर्जुन की तरफ से ना कॉन्स्टेंटली स्ट्रीम्स, ऐसा वो बोलते हैं ना हवे में ऐसा उड़ते ही रह रहा था, मतलब बारिश जैसा होता है ना वैसे एरोस गिरते ही रहे। तो एक एक एरो काउंटरैक्ट होता था और उसके बाद में जो बंदा चला है ना, वो बंदे के जो बॉ रहेगा या फिर उसके हाथ में जो चीज़ें रहेगा ना, वो चीज़ों को भी दूसरा एरो आके तुरंत मार, मतलब कोई व्यक्ति ये नहीं, मतलब ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग कभी अटैक करेंगे, एक बार छोड़ने के बाद दूसरा एरो लेके लॉन्च करने जितना वो जो टाइम का फ्रेम होता है ना, तो वो लोग को वही नहीं समझ में आ रहा था अर्जुन के साथ युद्ध करते टाइम कि वो कब हो रहा है, क्योंकि वो लोग को सिर्फ इतना दिख रहा था कि आते ही रह रहे, तो वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि वो गैप कितना है। मतलब अर्जुन इतना फास्ट है कि उसका एक एरो छोड़ने के बाद दूसरा एरो तुरंत ही आ रहा है,
दोनों एक साथ ऑलमोस्ट सेम स्पीड में आ रहे हैं, तो वो लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अर्जुन कभी ये सारा चीज़ कर रहा है, इतना फास्ट है अर्जुन। तो उसके वजह से ये कोई मैच ही नहीं था अर्जुन का वो टाइम पे। और फिर द्रुपद आता है और अर्जुन जो है जंप करके द्रुपद के इसमें जाके पहले तो द्रुपद के सारे अस्त्र शस्त्र सब बिगाड़ देते, तोड़ देते। फिर उसके बाद में जो चैरिटर रहता है उसको मार देते, फिर घोड़े को इंजर कर देते, फिर उसके बाद में जंप करके सीधा बंदी बना देते द्रुपद, बोलते कि अभी हो गए। तो द्रुपद बोलता है कि युद्ध बंद करो, सब लोगों को रिट्रीट करना बोलता है, क्योंकि उसको मार डालते हैं ना, अभी युद्ध चालू हो गया। तो इसको पकड़ते हैं, हाथ पैर बांध के सीधा द्रोणाचार्य के पास ले जाता है और खड़ा करते हैं। और तब भी एक्चुअली द्रुपद रियलाइज करते, द्रुपद इतना टाइम से वही सोच रहा था कि ये लोग आए क्यों है मेरे पास, पहले ये कौरव आए, फिर उसके बाद में पांडव आए, उसको समझ में ही नहीं आ रहा मैंने ऐसा किया क्या, क्योंकि मेरा तो हस्तिनापुर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अपना किंगडम देख रहा हूँ, सब बराबर चल रहा है, तो ये लोग क्यों मेरे साथ ये कर, वो ऐसा सोच रहा था। बट उसके बाद में जब अर्जुन उनके गले पे ये कटार ऐसा रख के बोलता ना कि मैं द्रोणाचार्य की तरफ से आपको बंदी बनाता हूँ, तब भी द्रुपद एक्चुअली रियलाइज करता है कि स्टोरी क्या है, ये लोग क्यों आए थे, और द्रुपद को एक एक करके पुरानी चीज़ें याद आती हैं। तो ये स्टोरी जाता है जब द्रुपद एक छोटा लड़का था और द्रोणाचार्य भी छोटे थे, ये लोग दोनों इक्वल इन एज, और ये लोग जो है ये लोग एक साथ एक ऋषि के गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, और ये लोग जब पढ़ रहे थे ना एक दूसरे के साथ, ये लोग का बहुत अच्छा रिलेशन, वो बेस्ट फ्रेंड्स, छोटे बच्चे हैं तो जिनके भी साथ है तो वो लोग का रिलेशन बहुत अच्छा था। एंड देवर बचपन में एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, कुछ भी हो जाए तो मैं साथ दूँगा। तो वो टाइम पे द्रुपद जो है वो बोलते हैं कि मैं एक दिन पंचाल का राजा बनूंगा ना, मैं जब राजा बनूंगा ना मित्र, तो तू याद रखना मेरे राज्य का आधा हिस्सा तेरा हो। तो ये जब तो वो टाइम पे तो सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद में ये लोग छूट गए, ये सब हुआ, ये लोग दोस्त है ना, कभी थोड़ी व्हाट्सएप और ये सब चलता था कि रोज़ रोज़ चैट करके भाई कैसा है, ऐसा नहीं होता। तो ये लोग बहुत साल बाद द्रोणाचार्य जो, तो द्रुपद इवेंचुअली राजा बन जाता है, पर द्रोणाचार्य जो दरिद्र रहता है, क्यों, क्योंकि वो ब्राह्मण है, तो उनके पास तो कुछ है नहीं, तो वो दरिद्र ही रह जाता है। उनका शादी होता है कृपी से, कृपी जो है वो कृपाचार्य की बहन, कृपाचार्य याद है कि जो कौरवों के जो कुल गुरु है, उनकी एक बहन है जिनका नाम है कृपी, ट्विन सिस्टर है। कृपी जो है, कृपी का जो विवाह है वो है द्रोणाचार्य। कृपी और द्रोणाचार्य को एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है अश्वत्थामा। अब बचपन से ही द्रोणाचार्य कैसे, द्रोणाचार्य है नहीं हस्तिनापुर, वो अलग अलग जगह जाते हैं, ब्राह्मण थे तभी के टाइम पे, तो वो लोग ऐसे घूमते घामते रहते, अलग अलग राज्य में जाते थे, उधर के जो बच्चे हैं वो लोग को शिक्षा देते थे, वो लोग ऐसे ही, वो लोग की जीविका ऐसे ही चलता था। तो एक दिन द्रोणाचार्य कुछ ऐसा चीज़ देखते हैं कि उनका हार्ट ऐसा मूव हो जाता है। क्या होता है कि बहुत सारे जो क्षत्रिय बच्चे रहते हैं ना, जो उनके पास पढ़ने के लिए, तो ये कौरवों की बात नहीं करता, अश्वत्थामा जो था ना वो थोड़ा काफ़ी बड़ा था ये लोग से एज में, जो पांडव और कौरव थे ना वो लोग से काफ़ी बड़ा था अश्वत्थामा उतना छोटा नहीं था जैसे ये लोग। तो ये उससे सब पहले की बात है, जब भी वो हस्तिनापुर में आते हैं द्रोणाचार्य, ये सबसे पहले की बात है। जब वो गुरुकुल चला रहे थे एक बार, तो उधर कुछ बच्चे आते थे जो लोग आके ये बताते थे कि आज हमने घर में दूध पिया, आज दूध का ये चीज़ बना हुआ था तो अच्छा लग रहा है। तो एक दिन जो है ये जो द्रोणाचार्य का बेटा है अश्वत्थामा, वो आता है घर पे और अपने माँ को बोलता है कि मुझे दूध पीना, दूध पीना है तो गाय से ही दूध निकालेंगे, पर इनके पास भैया नहीं, तो क्या करने का, आजू बाजू में भी कोई नहीं है पूछने के लिए, पर रोज़ रोज़ आके वो बच्चे बताया ही जाता है। और अश्वत्थामा को ये चीज़ है कि मैंने कभी दूध पिया ही नहीं है। तो वो कुछ बच्चे जो है ना, वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग रियलाइज़ कर लेते हैं कि अश्वत्थामा ने कभी दूध नहीं पिया। तो वो लोग है ना, एक दिन अश्वत्थामा को ट्रिक करता है
और दूध है बोल के कुछ और चीज़ पिलाते हैं उसको, ठीक है। और वो उस दिन बहुत खुश होकर घर पे आके बोलता है दूध है करके, दूध पिया मैंने। पर सारे जो बच्चे हैं ये लोग सब लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि वो था ही नहीं, मतलब ये झूठ बोल रहा था कि ये। तो वो टाइम पे जो है द्रोणाचार्य को जब ये सुनने में आता है ना, उनको बहुत ये होता है एज अ फादर, मैं मेरे बेटे को दूध, मतलब गाय का दूध भी नहीं पिला पाया मैं कभी। तो वो चीज़ होता है ना कि एज अ, तो वो रियलाइज़ करते हैं कि मेरे को थोड़ा तो धन चाहिए ये चीज़, और वो सोचते हैं कि मुझे किसी ने तो ऐसा वादा किया था, है ना, तो मुझे आधा राज्य तो नहीं चाहिए पर एक गाय तो दे सकता है ना। ऐसे बोल के वो पहुंचते द्रुपद के पास। तो वो द्रुपद के पास पहुंचते हैं और उसके बाद में बोलते हैं कि अरे मित्र, तुझे याद है हम लोग ऐसे करते थे वैसे करते थे, एकदम नॉस्टैल्जिया, बैक स्टोरी ये सब। और द्रुपद बोलते मुझे नहीं कौन, तो बोलते कि अरे लेकिन याद नहीं है हम लोग ये ऋषि के पास हम लोग पढ़े थे बचपन में, हम लोग ये सारा चीज़ें सीखे थे एक साथ, हम लोग एक दिन ऐसे किए थे वैसे किए थे, तूने मुझे बोला था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरा आधा राज्य तेरे को दूंगा मित्र, याद नहीं है मुझे आधा राज्य दूंगा। उसने बोला कि चलो ठीक है, बचपन में मैंने कुछ ऐसा बोल भी दिया होगा और तुझे दोस्त भी समझा होगा, लेकिन तू एक दरिद्र ब्राह्मण है, तू एक तो इतना तो याद रख, इतना भी तुझे नहीं पता कि दोस्ती हमेशा बराबरी वालों में होती है। दोस्ती ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के भी साथ दोस्ती कर लो। तो बचपन में मैंने कुछ बोला होगा, लेकिन तू ब्राह्मण है, इतना बड़ा हो गया, इतना तुझे अक्ल नहीं है कि दोस्ती हमेशा बराबरी वालों में। ब्राह्मण होने के नाते तू आके भीख मांग कि अगर मेरे को आधा राज्य देगा क्या, तो मैं आधा राज्य दे भी दूँगी, लेकिन ये दोस्ती यारी की बातें मत कर मेरे पास। तो मेरा दोस्त नहीं है, अपने आप को देखते से दरिद्र है, मैं राजा हूँ किधर का, ऐसी बात है। और पूछते कि क्या चाहिए आप, बोलते कुछ नहीं, और द्रोणाचार्य निकल गए। इंसल्ट, मतलब वो पूरे भरी सभा में उनको इंसल्ट करता है, और द्रोणाचार्य के हृदय में वो जो शुभा था इतने सालों से, वो वही चीज़ को लेके चल रहे थे। इवन जब वो पांडव और कौरवों को ये कर रहे थे फ्रेंड, उनके मन में यही था हमेशा से कि इनको रखते में एक दिन और इवेंट ले देगा। और ये सोचते सोचते द्रुपद को अर्जुन पहुंचा देता है द्रोणाचार्य के सामने, अतुल्य के बाद डालते हैं द्रोणाचार्य के चरणों में, बोलते कि ये आपका घास है, ये जो लेते हैं। सीधी बात है ना, जो राजा को हराया वो व्यक्ति ही राजा हुआ ना उधर का। तो अभी पांचाल देश किसका है, द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य डिसाइड करेंगे ना वहाँ पे कौन राजा है क्या है, क्योंकि द्रोणाचार्य का दास है उधर का करंट राजा। तो उसको बोलते हाथ पैर से सब रस्सी निकालो, फिर बोलते हैं अरे यार तू तो अभी योग्य ही नहीं रहा मेरे दोस्ती के, क्योंकि दोस्ती तो बराबरी वालों में होती है, तेरे पास तो क्या है आज, पांचाल देश तो मेरा है, ये कल के लड़कों ने तुझे हरा के मेरे सामने लेके आया, तू कुछ है क्या, बराबर है तू मेरे, नहीं ना, दोस्ती बराबरी वालों में होती है ना। पर यही तो फर्क है ना मेरे में और तेरे, तू दोस्ती बराबरी वालों में समझता है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मैं थोड़ा और उदार देता हूँ, तुझे मैं आज भी दोस्त मानता हूँ, इसीलिए पांचाल का आधा राज्य तू रख, और ये जो आधा राज्य है ना जो मेरे लड़कों ने जीता है, इसमें मैं अश्वत्थामा को राजा बना, और तेरा जो आधा राज्य है ना वो आधा राज्य में, मतलब ये टोटल जो राज्य है इसमें गौशाला भी है ना तेरा रॉयल वाला, वो गौशाला भी आधे आधे बटेंगे, आधे गाय मेरे आधे गाय तेरे, और तेरे गौशाला में बचे हुए गाय में से एक गाय को मैं लूंगा। अभी हुआ ना कुछ भाग जाए, अभी आधा राज्य ले ले, बाकी दोस्ती यारी अपना साथ में बैठेंगे कभी बोल के भेज देते हैं उनको रिटर्न। और द्रुपद जो है, द्रुपद अभी अंदर से जलना चालू करता है कि ये छोटे लड़के आके मुझे हराए,
ये पूरा प्लॉटिंग इसने इतने साल में किया था, मैंने गलती ही क्या किया, एक बार मैंने बोल दिया होगा कुछ, उसके लिए इसको ये सब करने की ज़रूरत थी, एक्यूमुलेशन। लेकिन क्षत्रिय है, वो ऐसा बात पे वापस ये नहीं कर सकते, वो राज्य तो उनका ही है। पांचाल बोल के उन्होंने अलग राज्य बना दिया, जो आधा दिया था उससे, फिर उसके बाद में वो जल के चले गए। तो ये स्टोरी था कि भाई क्यों द्रोणाचार्य इतना टाइम से ये सारे चीज़ कर रहे हैं। और तुम लोग को अगर याद है तो मैं बोल रहा था कि जब भी अर्जुन को फर्स्ट टाइम वो रात को ये करते हुए देखते हैं, है ना, तभी भी वो सो नहीं पा रहे रहते, वो कुछ सोचते सोचते ऐसे वो यही सोच रहे कि कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। और वो अर्जुन को भी जब हर बार देखते थे ना, वो टाइम पे वो वही रियलाइज़ कर रहे थे। जब भी अर्जुन उनको बचाता है ना वो क्रोकोडाइल से भी, कभी भी पकड़ता है तो अर्जुन यही बोलता है कि गुरुदेव आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो कुछ नहीं है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वही टाइम पे द्रोणाचार्य रियलाइज़ करते हैं कि यही है वो लड़का जो मेरा है, और आज वो दिन कंप्लीट हो गया। तो द्रोणाचार्य अपना फुलफिलमेंट में he embraces Arjuna and he says that today you are the best in the world, but I only have one request, and that is when I say you fight with me, you have to fight with me. समझे? नहीं तो अर्जुन थोड़ी उनके गुरु के खिलाफ है। तो बोलते हैं कि बस एक ही है शर्त, एक और चीज़ मुझे गुरुदक्षिणा में चाहिए, वो ये है कि जिस दिन मैं तुझे बोलूँगा कि मेरे साथ लड़, तो उस दिन तुझे मेरे साथ लड़ना फुल फोर्स। ये चीज़ है क्योंकि अपने स्टूडेंट है ना, वो इतना अचीव कर लिया तो उनको भी रहता है ना कि मेरे साथ भी कभी तो लड़े, मतलब वो टिपिकल क्षत्रिय ट्रेड्स। तो ये बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अश्वत्थामा अभी उधर का राजा बन गया, चलो द्रुपद पे हम लोग वापस आएंगे कुछ दिन बाद। अब ये लोग वापस आए, अर्जुन और पांडवों का खाती और बढ़ गया, सारे जो जितने सबको पता चल गया ना कि ये सारी चीज़ें हुई है, तो ये लोग को पता चला, तो अभी सारे जो सिटीजन है वो लोग प्रेशर डालने लगे कि युधिष्ठिर को अभी आप राजा बना दो, रिटायर हो जाओ। और सब लोग यही बोल रहे थे, आप वैसे भी क्या हो, आप प्रॉक्सी हो ना, बराबर ना, आप प्रॉक्सी हो, आप तो किसी और के बिहाफ पर रूल कर रहे थे, आप रूल तो कर नहीं सकते हो। अभी यार योग्य मिल गया तो फिर क्यों बैठे हो अभी? अभी जो योग्य है उसको बना दो, बात खत्म कर लो। युधिष्ठिर अगला राजा बनना चाहिए कि नहीं? कौन है इधर का उत्तराधिकारी, कौन है एक्चुअली? ये किंगडम किसका है? पांडु का है, तो पांडु का जो पुत्र रहेगा वो बनना चाहिए। चलो ठीक है, एक बार के लिए मैं मानता हूँ कि आप इधर के राजा हो। दुर्योधन थोड़ी बड़ा बेटा है, बड़ा लड़का तो युधिष्ठिर है, तो वो एंगल से भी युधिष्ठिर बनना चाहिए कि नहीं राजा? तो सब लोग ये करने लगते हैं, तो अल्टीमेटली भीष्म है, विदुर है, ये लोग सब लोग मिलकर बोलते हैं नहीं, ये सब आपको हम लोग कुछ कर नहीं सकते, सिटीजन का प्रेशर है, फिर उसके बाद में कुछ भी हो सकता है, लोग रिवॉल्ट करेंगे और ये सब होगा। क्यों हम लोग को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, आप युधिष्ठिर को जो है क्राउन प्रिंस बना। ये जैसे ही पता चलता है तो धृतराष्ट्र बेमनी से ही बोल देते जी, और ये लोग सेरेमनी करते हैं और युधिष्ठिर को क्राउन प्रिंस बना, क्योंकि अगला राजा जो है हस्तिनापुर का वो है युधिष्ठिर। इसके बाद दुर्योधन का पूरा वो बोलते हैं ना कि अब मुझे कोई भाग नहीं देगा, कुछ नहीं हो सकता, आप क्या करने लगे। तो ये आप उसका एक ही सहारा शकुनी के पास जाता है अपने भाई लोग के साथ। भाई मतलब सारे भाई नहीं, उनके सारे भाई भी इतने बुरे नहीं, कुछ भाई थे अच्छे। मेनली दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी, ये लोग मिलते हैं दूसरे के साथ। और उसके बाद में बोलते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हो, चीज़ें हाथ से निकल चुकी। तो शकुनी बोलता है कि मार डालते हैं ना, मार डालते हैं लोग को, बात खत्म करते हैं। करने में बोलते हैं अरे यही तो बात है, चलो आज ही अपन मिलते हैं। ये लोग को बोलते हैं कि भाई युद्ध करेंगे तो पता भी चल जाएगा कि मैं अर्जुन से बैठा। तो बोलते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं, बस
ऐसा तू रहने दे, छल से मार। ये लोग को अपन पहले हस्तिनापुर से बाहर लेके जाते हैं, जिधर हस्तिनापुर से जितना सहायता ये लोग को मिल सकता है ना, वो सहायता रुक जाए, और वहाँ पे ये लोग को हम छल से मार डालें, तो क्या है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नहीं तो अगर पता चल गया कि दुर्योधन ये सब चीज़ें कर रहे हैं और हस्तिनापुर में कोई चीज़ किया, तो वो सारा चीज़ फैल जाएगा सिटीजन्स में, और उनको पता चलेगा कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने मिलकर पांडु के बच्चों को मार डाला, तो ये लोग को अगला राजा बनने देना ही नहीं, सब सिटीजन्स रिवॉल्ट करेंगे। तो भीष्म भी हो सकता है कि इधर उधर पलट जाए एंड में, तो वो नहीं, पहले ये लोग को हस्तिनापुर से बाहर लेके जाओ कैसे भी, और हस्तिनापुर के बाहर लेके जाके इनको मार डालो। अब उसके लिए हम लोग प्लान हमको डिवाइस करें। मैं बताता हूँ मेरे पास एक प्लान। उतने में कर्ण टूट के बीच में पड़ता है और बोलता है कि नहीं नहीं, ये कोई क्षत्रियों को शोभा थोड़ी देती है ये सारी बातें, ऐसा थोड़ी करना होता है। अरे आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है, रणभूमि में उतारो उनको, वॉर करो, हम लोग हैं 100 भाई लोग हैं जो भी है, उनको बोलो उनके लोगों को लेके आने के लिए, हम वैसे भी स्ट्रांग है, और उनको बोलो 1-on-1 चैलेंज करो। क्षत्रिय है तो ना नहीं बोल सकते, सीधा लाओ ना उनको रणभूमि पे। भीष्म जो है वो तो किसी का साइड नहीं लेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है ना, जो राजा रहेगा, मैं तो राजा में अपने पिता को देखूंगा और राजा के लिए सब कुछ करूंगा, बराबर है। भीष्म तो न्यूट्रल है, तो कुछ नहीं बोले। द्रोणाचार्य जो है वो भले ही कितने भी अर्जुन अर्जुन करे, प्यार तो अपने बेटे से ही ज्यादा करता है ना, उनका बेटा अपना ही दोस्त है अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा अगर मेरा साथ देगा तो द्रोणाचार्य कभी अश्वत्थामा के खिलाफ जाके अर्जुन के साथ खड़ा नहीं रहेगा, वो भी न्यूट्रल होकर साइड हट जाएगा। अल्टीमेटली कृपाचार्य जो है वो अश्वत्थामा के क्या है, मामा ही तो लगता है ना, और द्रोण भी नहीं है, तो कृपाचार्य क्या करेंगे? कृपाचार्य भी कुछ नहीं बोले, तो कोई टेंशन है अपने को नहीं है ना, तो सीधा सीधा युद्ध करो, बात खत्म करो, है ना। मर्द जैसे काम करो, वैसे सब बोल के पूरा कर्ण ऐसा हाइपर हो जाता है, क्योंकि कर्ण को तो एक ही चीज़ चाहिए रहता है, कर्ण को ऐसा नहीं रहता ये राजा बनेगा वो राजा बनेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो बस अर्जुन के साथ मेरे को अभी प्रूव करना है कि मेरा क्या है। तो कर्ण ऐसा बोलता है, उतने में शकुनी बोल रहा है कि वो तो मैंने देख लिया था तुम लोग का, तू तो रहने दे, तेरे से कुछ होने नहीं वाला, तू बस बोल बच्चा। तो कर्ण बोलता है ऐसे कैसे बात कर रहे हो मेरे से, ऐसा वैसा। बोलते कि काम्पिल्य में क्या किया था? काम्पिल्य तो गया था ना, दुर्योधन दुशासन पूरा सेना लेके गया था, द्रुपद को तो हरा नहीं पाया तू, भाग के आया था ना साथ में ये लोग के, और वो अर्जुन सिर्फ 3 भाई लोग को लेके गया था, और गुरु दक्षिणा भी पूरा करके आया। 60-70 हज़ार लोगों को तो एक ही बार में निपटाता है खड़े खड़े, और तू भाग जाता है ना उधर से, यही किया ना इतने साल से। तो अभी चुप रहे, तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, तू बस बोलेगा उधर जाएगा मरेगा, अपना तो टाइम वेस्ट है। उससे बेटर है कि इसको ऐसे ही निपटा दे, तेरे लिए भी यही अच्छा है। राजा है तो राजा बन के बैठना, अच्छा लगेगा कि जाएगा अर्जुन के साथ युद्ध करेगा, मर जाएगा, फिर राजा कौन बन, राजा नहीं बन पाएगा ना, तो राजा बन के बैठ, सुखी रहे। क्यों सोच रहा है इतना? तू बस ये तेरे ईगो के चक्कर में तू बोलता है कि मैं इसको मारूंगा उसको मारूंगा, लेकिन तेरे से कुछ नहीं होना। तो कर्ण को गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, मैं तो प्रूव करके दिखाऊंगा, ये बोल के निकल जाता है कि ये सब में मैं हाथ ये नहीं दूंगा। मतलब ये कोई सही तरीका थोड़ी है, क्षत्रिय वैसा कवर्ड ऐसा ऐसे बातें करते हो, चलो निकलो इधर, तुम लोग को जो करना है बोलते हो निकल। फिर उसके बाद में शकुनी बोलता है देखो मैं बताता हूँ, ये बंदे के इसको मत रहे, उसके कॉन्फिडेंस के चक्कर में तू जाने दे, मैं बताता हूँ क्या करना है। वारनावत करके एक सिटी है, और वहाँ पे ना एक बहुत स्पेशल फेस्टिवल होता है, जहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है। वो फेस्टिवल है ना, वो इतना स्पेशल है कि पूरे दुनिया से लोग आते हैं वो देखने। तो पांडव जो रहेंगे वो लोग को भी इंटरेस्ट रहेगा उधर जाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कान में बात डाल देंगे कि ऐसे ऐसे एक सिटी है, अरे मस्त है, जाना ही चाहिए, पिकनिक तो मना ही सकते हो राजा बनने से पहले, ऐसे ऐसे। तो हम लोग ये चीज़ कर लेंगे। उसके बाद में वारनावत में हम लोग एक बहुत स्पेशल एक घर बनाएंगे, एक मैंशन, जो पूरा मैंशन है ना लैक से बनाएंगे, मतलब एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है पूरा, सब कुछ उधर, मतलब एक बार थोड़ा सा भी आग पकड़ लिया ना पूरा एक साथ जल जाना चाहिए,
और जल के राख होना चाहिए, वैसे कुछ बना देंगे। लेकिन बाहर से देखने में वो ऐसा नहीं लगेगा, बाहर से देखने में वो एक नॉर्मल घर जैसा लगेगा और एक्चुअली पूरा इनफ्लेमेबल होगा, ऐसे बना देंगे। एक दिन अमावस्या के रात को हम लोग ये 5 जन जब भी वो घर के अंदर है ना, हम लोग वो घर को जला के निकाल और बोल देंगे अरे यार क्या कर सकते हैं, 500 भाई मर गए एक्सीडेंट। और अमावस्या की रात थी तो किसी को इतना पता भी नहीं चला कौन आया क्या किया, कुछ पता नहीं। तो क्या है कि इधर भी कोई कॉमोशन नहीं होगा क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है ना किसने किया क्या किया। और वो लोग गए तो वो लोग मर गए। तो अगला राजा कौन? दुर्योधन, हैप्पीली एवर आफ्टर। सिंपल है ना। तो अपन हस्तिनापुर के अंदर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हस्तिनापुर के अंदर करेंगे तो बात फैल जाएगा, बात फैल गया तो अपने पे ही हावी पड़ जाएगा सब कुछ। और ये भीष्म सब अपने खिलाफ हो गए ना अगर, तो वो तो फिर छोड़ दो। तो ये लोग पूरा प्लॉटिंग कर दिया, पर ये लोग को एक ही व्यक्ति को कॉन्फिडेंस में लगा, तो वो है धृतराष्ट्र। तो दुर्योधन बोलते वो मेरे पास। फिर दुर्योधन जाता है धृतराष्ट्र के पास, बोलते हैं कि क्या हो रहा है मतलब ये क्या है ये सब। आप बोलते थे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, आप बताओ मैं नहीं बन सकता राजा, आपका ही बेटा हूँ ना, आप बड़े बेटे थे आपको बनना चाहिए था, आपका छोटा भाई बना, ठीक है कोई बात नहीं, आपको मिल गया ना वापस, मुझे बनना चाहिए ना इधर का राजा। और ये कल के आए किधर से, तो जंगल से उठ के आए, पता भी नहीं है कि ये पांडु के है कि ये भी नहीं पुत्र, और ये लोग का अब राजा बना रहे हो, ये वो है, बुरा लग रहा है मुझे बहुत ऐसा वैसा। तो धृतराष्ट्र बोलता अरे तू इतना मतलब ऐसा मत हो, क्या कर सकते हो ये वो, मैं भी कई बार सोचा ये लोग नहीं होते तो कितना अच्छा होता। तो बोलते हाँ यही बोलना है, ये लोग नहीं होते तो अच्छा होता ना। तो बोलते क्या बोलना चाहते हैं, देखिए अरे मतलब अगर ये लोग इधर रहेंगे ही नहीं तो क्या प्रॉब्लम है, तो सब पहले जैसा हो जाएगा ना, हम लोग सब लोग खुश हैं। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं ऐसा सोचना भी पाप है, तू जो सोच रहा है ये सही नहीं है, उनको मारना नहीं चाहिए। तो मतलब आप हमेशा मुझे ऐसा ही देखना चाहते हो है ना, जलते हुए ये हमेशा उनका दास बन के रह जाता हूँ ना मैं। तो वो जो मोह होता है ना अपने बच्चे के प्रति, वो धृतराष्ट्र का जितने भी अच्छे फीलिंग्स होते हैं ना पांडवों के प्रति, उसको ओवर पावर कर देते हैं। और धृतराष्ट्र मान जाता है ये पूरे प्लॉट के लिए कि वारनावत जीत गए और वारनावत में चीज़ें खत्म हो गई। और जो कोर्ट रहता है ना अभी वो टाइम पे पांडव और ये सब कोर्ट रूम्स और ये सब अटेंड करना चालू कर चुके थे, तो योग्य बन गए। और कोर्ट रूम में एक दिन ऐसे ही बात चालू हो गई वारनावत के बारे में, दूसरे दिन बात हो रही है, तीसरे दिन तो पांडवों में भी उत्सुकता आ गई कि हाँ ये देखना तो चाहिए। और अचानक से कैसा है कि दुर्योधन भी बोल रहे हैं कि अरे आप लोग के लिए एक भव्य घर बनाया है, ऐसा है ये सब। तो ये लोग सब लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है तो हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। युधिष्ठिर को छोड़ के, युधिष्ठिर थोड़ा कॉशियस था ये सब चीज़। युधिष्ठिर को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से दुर्योधन इतना अच्छा कैसा हो गया है। और दूसरी बात ये थी, दुर्योधन का दूसरा एक प्लॉटिंग ये था, धृतराष्ट्र ये बोल रहा था कि अगर तुम लोग अगर समझो कि वारनावत लेके गए और वारनावत में तुम लोग ने कुछ भी किया उसके साथ, वो लोग के साथ में पांडवों के साथ में, अरे फिर भी तो इधर के सिटीजन सोच सकते हैं ना कि ये सब तूने किया है, तो उसका क्या। तो वो टाइम पे दुर्योधन बोलता है कि उसके लिए भी प्लान है, हम लोग क्या करेंगे, वारनावत बेच के तुरंत थोड़ी मार डालेंगे। वारनावत भेजने से पहले ही मैं, दुशासन, हम लोग सब लोग है ना, ये जितने भी सिटीजन है ना, ये लोग सब लोग को अच्छा अच्छा गिफ्ट देना, वो लोग के प्रॉब्लम सॉल्व करना और ऐसे ऐसे चीज़ें करने लगेंगे जैसे अभी पॉलिटिशियंस करते हैं ना इलेक्शन आने से पहले। तो वैसे सब दुर्योधन वो टाइम पे प्लान किया कि हम ऐसे सब करेंगे। अच्छा नहीं, अरे इधर ये प्रॉब्लम, अरे मैं सॉल्व करता हूँ, ऐसे सब अच्छे अच्छे चीज़ें करेंगे। तो क्या है कि सिटीजन्स के बीच में ना इम्प्रेशन हम लोग का बदल जाए, सबको ऐसा लगेगा कि दुर्योधन एक बहुत अच्छा राजा बन सकता है यार, अभी ऐसे सब युधिष्ठिर नहीं होता। तो ऐसे एक इमेज चेंज करेंगे मैं, और मीनवाइल वो लोग को उधर भेज देंगे और मैं ये चीज़ें कंटिन्यू करूँगा और एक दिन वो लोग मर जाएंगे तो ऑफकोर्स ये लोग मेरे को एक्सेप्ट कर ही लेंगे।
ग्रेजुअली कि हाँ ठीक है इनको राजा बना दो, ये उसका प्लान था। अब क्या हुआ, एक दिन इसको भेज, मतलब ये लोग सब लोग चले भी जाते जाते बस युधिष्ठिर एक बंदा रहता है, वो युधिष्ठिर को ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, मेरे को सही नहीं लग रहा। और जाते जाते सब लोग भाई भाई भी बोलते हैं और ये लोग निकलते हैं, और वो टाइम पे रास्ते पे ये लोग को विदुर मिलता है। और विदुर है सबसे स्मार्टेस्ट, मतलब ये पूरे महाभारत के अंदर एक्चुअली सबसे स्मार्ट विदुर, मतलब एथिक्स और ये सारे चीज़ों में, पॉलिटिक्स और इसमें सब। और विदुर मिलते हैं, सारे सिटीजन्स इनको छोड़ने के लिए हस्तिनापुर के आउटस्कर्ट्स तक आते हैं, क्योंकि वो लोग उतना प्रेम करते थे पांडवों से। तो वो लोग आते हैं, उतने में विदुर आता है। और विदुर एक म्लेच्छ लैंग्वेज में, मतलब कोई ट्राइबल म्लेच्छ लैंग्वेज रहता है, उसमें युधिष्ठिर को एक चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, एक क्रिप्टिक मैसेज जो किसी और को नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि युधिष्ठिर और विदुर ये लोग दोनों बहुत सारे लैंग्वेजेस जानते हैं, और वो ऐसे ही एक लैंग्वेज जो कोई नहीं जानता है उसमें वो एक चीज़ कन्वे करता है। और वो ऐसे लिखते हैं कि कभी कभी शत्रुओं के द्वारा दिया हुआ जो शस्त्र होता है ना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक नॉर्मल चीज़ भी शस्त्र जैसा काम कर रहा होता है। और एक चीज़ याद रखना, वो चीज़ जो पेड़ों को और घास फूस को खा जाती है, उससे वही बचता है जो अंदर रहता है पृथ्वी पे। ऐसा कुछ बोल के वो छोड़ देते हैं, और युधिष्ठिर समझ जाते हैं क्या है, तो युधिष्ठिर बोलता है, और उसके बाद में वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुंती जाते जाते उनको पूछती है कि क्या है, तो वो बोलते हैं कि ये जो घर, ये लोग जो घर की बात कर रहे हैं ना, वो घर एक्चुअली एक प्लॉट है हम लोग को मार डालने का, वो शस्त्र जैसा काम करेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि ये लोग कैसे मार डालने वाले हैं, ये लोग अग्नि से मार डालने वाले हैं, क्योंकि अग्नि एक ऐसी चीज़ है जो पेड़ और घास सबको खा जाता है। और अग्नि से कौन बचता है, चूहा बचता है। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन के नीचे होता है। तो वो ऐसा बोल रहे बेसिकली कि हमको चूहा जैसे वो घर के अंदर से निकलना है, मतलब किसी को दिखाओ मत। अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे भीम से बोलते भी है, वो बोलते हैं कि अरे तो फिर उधर जाना ही क्यों, हम लोग रिटर्न जाते हैं, अभी के अभी बोलो 100 को अभी निपटाऊंगा, ख़त्म करते हैं मैटर, ना रहेगी बात ना बजेगी बात सुनी, है ना। तो युधिष्ठिर बोलता है नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि तू अभी जाएगा मारने के लिए तो इधर गलत कौन रहेगा, गलत हम रहेंगे ना, कि हम एक दिन अचानक से उठ के चलेंगे और 100 के 100 बेटों को मार डालेंगे, तो हमको कोई एक्सेप्ट करेगा उसके बाद। दूसरा चीज़ ये है कि तू 100 जन को मार तो रहेगा, फिर उसके बाद में ये भीष्म द्रोण कृप सब अपने खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि हम राजद्रोही है ना, हम उधर के प्रिंस लोग को मार डाल रहे थे। तो ये गलत है, हमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो आगे बढ़े। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि फिर वारनावत जाना ही क्यों है, अगर हमको पता है कि वारनावत में इश्यू है तो हमको जाना ही क्यों है, हम रिटर्न आ जाते हैं। बोलते नहीं, अगर हम लोग हस्तिनापुर में या किधर और भी जाए ना, तो भी हमको इस तरीके से मार डालने का प्लान चलता ही रहेगा, इसका कोई एंड नहीं। और ये लोग सामने सामने आके नहीं करेंगे अपने सब कुछ, इसमें क्या है एटलीस्ट अपने को श्योरिटी है कि होने क्या वाला है आगे, तो हम लोग एटलीस्ट कुछ आगे स्टेप वो हिसाब से ले सकते हैं। हस्तिनापुर जस्ट बिकॉज हम लोग आगे, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई सब कुछ ठीक हो गया, ये लोग अपने खिलाफ ये सब करते ही रहने वाले, तो अपने को वंस एंड फॉर ऑल रोकना है ना ये सब चीज़ें, तो इसीलिए वारनावत जाना ही नेसेसरी है। तो हम लोग वारनावत जाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो दुर्योधन का एक बहुत फेवरेट एक मिनिस्टर है, जो मतलब उसके जैसा ही थोड़ा क्रिकेट था, उसका नाम था पुरोचन। पुरोचन करके जो मिनिस्टर था ना दुर्योधन का, उसको एक्चुअली दुर्योधन ने ये स्पेशल असाइनमेंट दिया हुआ रहता है, वारनावत का घर का पूरा प्रिपरेशन, और उसके बाद में सही टाइम पे वो पूरे घर को जला के पांचों पांडवों को मारना, कुंती के साथ, क्योंकि कुंती भी वो लोग के साथ है। ये असाइनमेंट दिया हुआ रहता है पुरोचन, और पुरोचन अपना काम करना रहता है। ऑलमोस्ट 1 साल पांडव वारनावत में रुकते हैं, और वो 1 साल में वो लोग इतने अलर्ट रहते हैं जिसके वजह से ये लोग को कभी चांस ही नहीं मिलता अपना प्लान एग्जीक्यूट करना। लेकिन वो लास्ट डे आ रहा होता है,
प्लान एग्जीक्यूशन का। तो उससे जस्ट पहले अब क्या है ना, विदुर का एक्सपर्टीज देखो। पांडव उधर गए और कुछ ही दिनों में पांडव एक माइनर से मिले। माइनर मतलब समझो ना, जो खड्डा खोदता है और वो सोना और ये सारी चीज़ निकालने के लिए वैसे किसी, और वो आके बोलता है कि मुझे विदुर ने भेजा है यहाँ पर। तो वो लोग कैसे भरोसा करें, क्योंकि वो लोग युधिष्ठिर पे भेज सकते हैं, पता चल गया कि विदुर को सब पता है तो फिर युधिष्ठिर ये कर सकता ना। तो वो लोग तो वो जो क्रिप्टिक मैसेज रहता ना, जो विदुर ने बोला रहता, वो एग्जैक्ट मैसेज वापस ये व्यक्ति भी बोलता। तो युधिष्ठिर को पक्का हो जाता है कि इसको विदुर ने बोला। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि क्या बोला है विदुर जी ने। बोलते हैं कि मैं ऐसा ऐसा, मैं एक्सपर्ट हूँ एक खड्डे और ऐसा बनाने में, तो मैं बना दूंगा, मेरे को एक रूट दे दो तो मैं आपको करके देता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो पांडव डिसाइड करते हैं कि आजू बाजू में जो वन है ना, वो वनों के अंदर पंच पांडव एवरी डे जाके विहार करते हैं। तो सबको ऐसा लगता था कि प्रिंस लोग, ये लोग विहार करने जा रहे हैं, बट एक्चुअली वो लोग है ना रूट्स ढूंढ रहे थे अंदर, कि अगर मैं खड्डा बनाऊँ घर के अंदर से तो उसको किधर ओपनिंग देना चाहिए, ताकि अगर पूरा घर जल गया तो ऐसा दिखना चाहिए कि हम मर गए, लेकिन हम लोग इधर से बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलेंगे तो हमको कितना दूर निकलना पड़ेगा, जंगल क्रॉस करके, ताकि कोई हमको देखे ही नहीं और किसी को पता ही नहीं चले कि हम बच के निकल गए, बराबर ना। कोई इनको देखना नहीं चाहिए ना रात को। तो ये लोग वो सारा रूट्स ढूंढते हैं कि कौन से रूट से अगर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद में वो माइनर को बताते जाते हैं कि ये जगह से लेना, इधर से राइट लेना, उधर से लेफ्ट लेना, और वो हिसाब से वो जगह अंडरग्राउंड बना देते हैं। अब वो दिन आया है जिस दिन एक्चुअली कुंती वो फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा, और उस दिन जो कुंती महारानी और ये लोग रहते हैं, ये लोग है ना बहुत सारे लोगों को बुला के उनको खाना वाना और ये सारी चीज़। तो एक ट्राइबल वुमेन रहती है और उसके 5 बच्चे रहते हैं, ये लोग भी आए रहते हैं खाने। तो ये लोग खाना खाते हैं और खाने के साथ साथ में थोड़ा पी भी लेते हैं, और उसके वजह से ये लोग को उठा के भेजने के लिए जब लोग आते हैं ना, जो दास दासियाँ होते हैं, तो ये लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। वो लोग कहते हैं हाँ इधर ही सो जाओ, तो वो लोग वो महल में ही सो जाए, और ये चीज़ के बारे में किसी और को नहीं पता। अब वो दिन रात को भीमसेन को युधिष्ठिर बोलता है कि हम लोग अभी इधर से निकल रहे हैं, फटाफट से आग जला दे, पुरोचन अंदर सो रहे हैं, उसी का प्लान है ना ये सब, तो उसी को इसके साथ में जाने दो, हम लोग इधर से निकल जाएंगे, तू खुद जला दे और भाग के आ जा। और पुरोचन को ऑफ गार्ड लेते हुए ये लोग पूरा महल खुद ही जला देते हैं, और उसके बाद में अंडरग्राउंड टनल से भागते हैं, और ये लोग भाग के टनल से बाहर निकल जाए, और वहाँ पे पुरोचन जो रहता है वो जल के मर जाता। पर पुरोचन के साथ साथ में अननोइंगली और 6 लोग मर गए, वो ट्राइबल वुमेन और उसके 5 बच्चे, जिनका डेड बॉडी देख के जितने भी गांव वाले और ये थे ना, वो लोग ये मान लेते हैं कि वो कुंती और 5 पांडव थे। तो बात फैल जाती है हस्तिनापुर तक, और बोलते हैं कि बॉडी भी मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं है, बोलो बच कि एक स्त्री और एक था वो इधर का, तो वो पुरोचन है शायद, तो ऐसा बॉडी भी मिल गया है। ये लोग गए, वो लोग वो डेथ राइट्स और ये सब रहता है ना, वो सारा चीज़ करते हैं, और वो लोग मान लेते हैं कि पांडव जो है वो लोग, और एक भाई दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं, वो अगला क्राउन प्रिंस बन जाता है, क्योंकि अभी का जो क्राउन प्रिंस वो मर गया ना, तो अगला क्राउन प्रिंस दुर्योधन बन जाता है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों, ये लोग जो है वो जंगल से एक ओपनिंग की तरफ बाहर निकलते हैं, थोड़ा और दूर चलते हैं तो एक नदी आती है, वो नदी अभी क्रॉस करने के लिए वो लोग डेप्थ चेक कर रहे रहते हैं। उतने टाइम पे एक बोटमैन आता है उनके पास, और वो सेम मैसेज बोलता है जो विदुर ने बोला। तो ये लोग समझते हैं इनको भी विदुर ने भेजा, बोलते हैं कि मैं आपको एक जगह लेके जाता हूँ, और वो बोट पे बिठाता है, और 4-5 घंटे बोट में ट्रैवल करने के बाद एक जगह पे एक जंगल के ओपनिंग में छोड़ता है। बहुत खतरनाक जंगल है वो, जंगल के ओपनिंग में छोड़ता है, बोलते हैं कि इधर से आप देखो, मुझे भी याद है। तो वो लोग भी सोचते हैं कि कुछ तो सोच के ही बोला हो जो भी है,
और उसके बाद में अभी वो जो बोटमैन है ना, वो 6-7 महीने से एवरी नाइट उधर आके वो स्पॉट पे खड़ा रहता था। एवरी नाइट पूरा नाइट खड़ा रहता था, चले जाता था, पूरा नाइट खड़ा रहता था, चले जाता था। 6-7 महीने बाद एक्चुअली पांडव एक्चुअली आए, क्योंकि वो लोग 6-7 महीना लगा दिए ना ये सब करते थे। फिर उसके बाद में बोलते मतलब विदुर जी वो तब से प्लान कर रहे हैं, 1 साल पहले से उन्होंने पूरा लोगों को सेट करके रखा हुआ, तो इधर मिलेगा, तो इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, और उनको वो जंगल में छोड़ देते हैं। अब वो जंगल एक्चुअली बहुत खतरनाक होता है, वो जंगल एक्चुअली बहुत खतरनाक है। मतलब वहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना कि इंसान रेयरली कोई इंसान जाता है, तो वहाँ पे कोई ऐसा पाथ भी नहीं होता जाने के लिए। तो भीमसेन क्या करता है, अपने ऊपर ये 500 को बिठाता है और ना भागना चालू करता है जंगल के अंदर से। तो आमने सामने जो पेड़ पौधे आए वो सब कुछ ऐसा निकल गए, सब तोड़ फोड़ के फेंक दिया, फूले उड़ रहे हैं, ऐसे सब रात को ये सारी चीज़ें हो रही है। और भागते 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 कभी उसके बाद में अचानक से नदी या कोई स्ट्रीम ऐसा आ जाता था, ये 500 को रखते स्विम कर देता था, ऐसे सब। और ये लोग बैठे बैठे ये लोग थकने लग गए थे। तो एक जगह आता है जहाँ पे ये लोग बोलते कि अभी उतारो, थोड़ा टाइम सोने में, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग खाए पिए कुछ नहीं। और कुंती बोलती है कि मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी चाहिए। तो भीमसेन जो है उसको सुना ही पड़ता है, वो पानी फ्लो होने का जो आवाज़ रहता है ना, उससे वो रियलाइज़ करते हैं कि ये डायरेक्शन में किधर तो एक वाटर स्ट्रीम है, तो उधर जाके पानी लेने के लिए जाता है। और पानी लेके जब रिटर्न आता है ना, तो वो देखते हैं कि कुंती महारानी ऑलरेडी सो चुकी है और चारों भाई सो चुके हैं। तो सो गए थे, इनको अभी क्यों उठाना, अभी आगे। तो उसके लिए फिर भीमसेन भी उधर बैठ के रेस्ट करता है। तो ये जितने भी दिन ये लोग जंगल में थे ना, भीमसेन सोते ही नहीं, वो उधर बैठते हैं और इनको गार्ड करते हैं। और किधर भी जाना होता है ना, इनको लेके खुद चलते हैं, मतलब ऐसा। तो वो सब थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स है भीमसेन। एक दिन रात को ये लोग एक पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, और वो टाइम पे भीमसेन बैठे हैं वहाँ पे। कुछ ही दूर एक वृक्ष के ऊपर एक राक्षस और एक राक्षसी रहते। तो ये लोग भाई बहन थे, पति पत्नी थे, भाई बहन। तो ये जो राक्षस था ना, बेसिकली ये लोग कैनिबल्स थे। ये लोग ह्यूमंस को खाते, मतलब ह्यूमंस को ही नहीं, सब कुछ खाते ये लोग। और ये लोग का ह्यूमंस, ये लोग का फेवरेट फ्लैश है ऐसा। तो ये लोग को रेयरली कोई ह्यूमन मिलता था वो जंगल में, तो ये हार्डली आता है, तो वो लोग को ये खा जाता है। तो एक दिन ये राक्षस जो है वो बैठा और इसको सेंट आने लगता है ह्यूमन फ्लैश का। ये बोलता है कि अरे काफ़ी ह्यूमन फ्लैश है ये डायरेक्शन में। तो ये अपने बहन को बोलता है, तो इसका नाम हिडिम्बा होता है और उसकी बहन का नाम हिडिम्बी है। तो वो हिडिम्बी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये इनको जाओ लेके आ जाओ, अभी अपन डिनर। तो हिडिम्बी जब जाती है ना इनके पास में, और हिडिम्बी देखते हैं कि सिर्फ भीमसेन जगा हुआ है, लेकिन भीमसेन को देखते ही उसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि खाना वाना तो ठीक है, चलता रहेगा, बाद में किसी और को करना, लेकिन इसके साथ तो शादी करना। तो ये जाके शादी करने के लिए प्रपोज करती है, अच्छा वेट बूट सब बना के ये प्रपोज करती है। भीमसेन बोलते हैं कि अभी ये सबके लिए बहुत टाइम देखना मुझे। तो बोलते हैं कि नहीं, अपने तरफ से भाग जाते हैं, क्योंकि मेरा भाई आ जाएगा, और भाई आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत, तुम लोग को खा जाएगा, ये है वो राक्षस है। तो ये लोग जो है, तो हिडिम्बा, फिर उसके बाद में हिडिम्बा को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है करके, ये कितने टाइम लगा रही है। तो वो आ जाता है